Good morning, students. Welcome back. Uh, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है लेक्चर नंबर 8. लेक्चर नंबर 7 लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर्स देखा था. तो एनीथिंग दैट एनी डिवाइस दैट कैन होल्ड चार्ज and can store electrostatic potential energy is called a capacitor. For any type of capacitor, for any capacitor, the ratio of Q by V is constant and is called C, which is called as capacitance of the capacitor. So the most famous expression was Q is CV. सिंगल कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करने से अच्छा है दो को यूज करें. Two good conductors placed near each other but separated by a finite distance. This is actually a parallel plate capacitor. एक पे पॉजिटिव क्यू डालो, दूसरे पे माइनस क्यू डालो. The net charge is zero. This is called Q is called the charge of the capacitor and V is the potential difference between the two plates. दो प्लेट हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं उसको. दो प्लेट हो, दो स्फीयर्स हो या दो डिस्क हो, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है. एंड d is the distance between both the plates. Always remember the electric field between the plates is always from positive to negative and electric field is sigma by epsilon 0, where sigma is the surface charge density on each plate. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, लेट मी राइट इट हियर, C is epsilon 0 A by D. So epsilon 0 is the permittivity of free space, A is the area of the plates and D is the distance between the two plates. ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. भाई स्फीयर भी तो एक कैपेसिटर है, भूलना नहीं. So sphere का capacitance C is 4 pi epsilon 0 r, where r is the radius of the sphere. मैंने आपको last time अर्थ का capacitance find out करने को कहा था. I hope you have found that out and given the answer in the comment section. So this was what we did last time. अब जैसे 10th में आपने resistors in series and parallel देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी capacitors in series and parallel देखेंगे. Let's first look at capacitors in series. Let's consider two capacitors to be in series. So the first idea is series connection of capacitors. तो मेरे पास दो capacitors हैं. Two capacitors out here. टेढ़ा हो गया. ये पहला और ये दूसरा. Let us call this C1 and this is, let us call this C2. Initially both are uncharged. Capacitor initially charged नहीं होता. And I have connected both these capacitors to this battery. This battery is V. It's a DC battery. V volt का battery है. कैपेसिटर पे चार्ज डालना पड़ता है, अपने आप नहीं जाता. So always remember this. And सर आपको कैसे पता चला दोनों सीरीज में है? Understand. If only one hand of each capacitor is connected, that too purely, nothing in between, then this is called a series connection. Now, in other way, positive charge, positive terminal of the battery is connected to the left plate of C1. So यहाँ से इस पे positive charge जाएगा. Negative plate is connected here. So इस पे negative charge जाएगा. But the magic is जितना पॉजिटिव चार्ज, बैटरी तो यही है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहां गया उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा. सो इफ आई कॉल इट, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. अंडरस्टैंड, दिस इज प्लस क्यू, दिस हैज टू बी माइनस क्यू. दिस कैन नॉट बी Q1 एंड Q2, नो, बिकॉज बैटरी इज द सेम. सो जितना चार्ज ये प्लेट इसको देगा उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट इसको देगा. एंड ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. सो यू कैन सी फाइनली टू हर एक कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना हो गया? 0 0.
तुम कहते हो सर ये प्लेट पे चार्ज ना आता तो ओके कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम ये होता कि ये लेफ्ट प्लेट इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये राइट प्लेट C2 का और इस पे नेगेटिव चार्ज एंड ये कनेक्शन। तो डू यू अग्री पॉजिटिव से नेगेटिव एक नियर इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा होता। दीज आर टू डिफरेंट कंडक्टर्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। देन ड्यू टू दिस फैक्ट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर और ये दोनों का मिलन नेट कितना हो जाएगा 0। तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं और ये इंडक्शन की वजह से होता भी है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ टू कैपेसिटर्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 एंड फ्रॉम द फिगर यू कैन सी ये पूरा V है, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो फ्रॉम द फिगर V is V1 plus V2. This is the first equation. And secondly, in series, now this I'm going to write in blue. We see that in series, the charge on each capacitor, the charge on each capacitor will be same. You know, आपने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टर्स इन सीरीज किया था। रेजिस्टर्स अगर सीरीज में हो तो हर एक के थ्रू करंट सेम होता है। सो जैसा रेजिस्टर में करंट वैसा यहाँ पे चार्ज, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में है तो हर एक पे चार्ज सेम होगा। लेट अस कॉल द चार्ज टू बी Q। तो V is V1 plus V2। नाउ डू यू अग्री Q is C1 V1, Q is CV, याद है। Therefore, how much will be V1? Q by C1. Also, Q is C2 V2, तो V2 is Q by C2। तो इक्वेशन 1 में V1 की जगह Q by C1 लगाए, V2 की जगह Q by C2 लगाए। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, V is Q by C1 plus Q by C2। Q को कॉमन लिया, 1 by C1 plus 1 by C2, Q को नीचे उतारा and this is my equation number 2। हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, देन डू यू एग्री इक्विवेलेंट का मतलब है इन दो की जगह अगर एक ही कैपेसिटर रखा जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा, C1 एंड C2 के रिस्पेक्ट में। सो इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, then I'm sure you will understand, then Q is CS into V, बराबर। उसमें भी चार्ज Q ही होगा, तो Q is CS into V। मुझे V by Q चाहिए, तो how much is V by Q? Isn't it 1 by CS? So ये भी V by Q 1 by CS, ये भी V by Q 1 by C1 plus 1 by C2। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करने से मुझे इक्विवेलेंट मिलता है, ये उड़ा देता हूं मैं। सो इक्वेटिंग 2 एंड 3, मैंने 2 रखा है, इक्वेटिंग 2 एंड 3 क्या मिलता है, 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2। अगर ये इक्वेशन ध्यान से देख रहे हो तो isn't this the equation for resistors in parallel? So जो resistors in parallel का इक्वेशन है वो capacitors in series का है। ये तो ठीक है, दो कैपेसिटर है। For n capacitors in series, what would be the final equivalent capacitance? 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus plus 1 by Cn। So बहुत ही बढ़िया इक्वेशन ये रहा। सो V 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus plus 1 by Cn। एंड ये तो ठीक है, दो कैपेसिटर का डायग्राम दिखाया मैंने, n कैपेसिटर्स का भी दिखा सकता हूँ। तो n कैपेसिटर्स का डायग्राम कुछ इस तरह होगा, ये 2, ये 3 टक 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 और ये n।
तो ये C1, ये बैटरी नीचे कनेक्टेड है, मैंने दिखाई नहीं है, बट सेम आइडिया। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज आया प्लस क्यू, तो इस पे आएगा माइनस क्यू, एंड इंडक्शन की वजह से इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस तो इस पे माइनस, इस पे माइनस तो इस पे प्लस, इस पे प्लस तो इस पे माइनस, इस पे माइनस तो इस पे प्लस। कैन यू सी दिस? चार्जेस इस तरह इंड्यूस होते हैं हर कैपेसिटर पे। तो बोले कि सर C2 C3 वगैरह तो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। एब्सोल्युटली, यही तो सबसे बड़ी बात है कि भले C2 C3 बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट ड्यू टू इंडक्शन इनमें भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। सो फाइनली योर इक्वेशन फॉर सीरीज is 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus tuck plus 1 by Cn. This was series connection of capacitors. और उसमें ये याद रखना सीरीज की दो चीजें, सीरीज में सब पे चार्ज सेम रहेगा, और दूसरा एक कैपेसिटर का एक हाथ दूसरे कैपेसिटर के एक हाथ के साथ ज्वाइन होगा, तो प्योरली ओनली देन इट इज इन सीरीज, नहीं तो सीरीज नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो ये सीरीज है, जरा देख लो, पैरेलल करते हैं फिर। I'm back. पैरेलल, प्यारे लाल भी कहते हैं उसको, बहुत बढ़िया रहता है पैरेलल। जैसा रेजिस्टर में था पैरेलल वाला, वैसा ही है ये, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इक्वेशंस में कभी कभी फर्क आता है, क्योंकि बेसिक आइडिया में थोड़ा फर्क आ जाता है। पैरेलल, ओके। तो दो कैपेसिटर्स कंसीडर करते हैं पैरेलल में। पहले तो ये पहला C1, ये दूसरा C2, और दोनों को पैरेलल में लगाते हैं बैटरिया के साथ। सर पैरेलल में कैसे पता चलेगा? दोनों कैपेसिटर ने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये एक हाथ इसके साथ और दूसरा हाथ भी इसी के दूसरे के हाथ के साथ, मतलब दोनों डांस कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्यारे लाल, बराबर। सीरीज में एक ही हाथ पकड़ा होता है, ओके। पैरेलल में दोनों हाथ पकड़े होते हैं। प्योर इम्प्योर का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन पैरेलल कनेक्शन इज दैट बोथ कैपेसिटर्स individually have got battery V connected to it. Alright, so what is the most important that is, जैसे वहां पे सीरीज में क्या लिखा था, इन सीरीज the charge on each capacitor is same, तो यहाँ पे लिखेंगे in parallel the potential difference across each capacitor is same, PD, बराबर। सर मतलब क्या है इसका? पहले एक कैपेसिटर को इंडिविजुअली एक को ही देना पड़ता था, सॉरी एक बैटरी को इंडिविजुअली एक को ही देना पड़ता था, पर अब इस बैटरी को दोनों को सप्लाई करना पड़ रहा है चार्ज। सो दोनों को सेम चार्ज सप्लाई नहीं होगा, ये दोनों इंडिविजुअली वी के साथ कनेक्टेड है, तो ये जितना चार्ज देगा वो इन दोनों में बटेगा। अंडरस्टैंड दैट? सो चार्ज विल डिवाइड, हर एक के हिसाब से डिवाइड होगा। अगर C1 बड़ा होगा तो वो ज्यादा ले जाएगा, C2 बड़ा होगा कम होगा तो वो ले जाएगा दूसरा। सो ईच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड द चार्ज विल डिवाइड। सो चार्ज का डिवीजन पैरेलल में ही नजर आता है। सो सपोज करो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज होगा Q2। इसने तो Q दिया, वो Q दोनों में बट गया। सो हियर फ्रॉम द फिगर, डू यू एग्री? Q चार्ज जो इस बैटरी ने दिया वो थोड़ा इसको मिला, थोड़ा इसको मिला, सो Q is Q1 plus Q2, and now Q1 is C1V, पोटेंशियल तो दोनों के अक्रॉस सेम ही है V, तो Q is C1V and Q2 is C2V। तो इन दोनों को उठा के लगा दो वहां पे और देखो मैटर कैसे चलता है।
So Q is C1V plus C2V. वाह, C1 plus C2 को कॉमन लिया जाए, यही ले लेता हूं एंड V को नीचे उतार देता हूं. Q by V is C1 plus C2. और जैसा मैंने ये लिखा था कि if equivalent capacitance is Cp, then क्या होगा? Q is C into V. Q is Cp into V. अब ये दोनों की जगह मैं सिर्फ एक कैपेसिटर लगा रहा हूं. ये देखो, ये एक और ये बैटरी और ये है Cp. तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसको ही देगा. देन Q is Cp into V और Q by V is Cp. ये बहुत नीचे हो गया, शायद ऊपर लिखते थोड़ा. कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते पैरेलल वाले में. आप देख लो एक सेकेंड. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, चार्ज विल डिवाइड. ठीक है, देख लिया सर. सीरीज में चार्ज इज सेम, पोटेंशियल डिवाइड्स. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, चार्ज डिवाइड्स. तो बहुत ही फंडा सही. एंड if equivalent capacitance is Cp, then Q is Cp into V और Q by V is Cp. इक्वेशन नंबर कौन सा है? 3. 2 को देखो Q by V, 3 को देखो Q by V. तो इक्वेटिंग 2 and 3 क्या मिलेगा? Cp ब्लू में लिखेंगे सर. Cp is C1 plus C2. Cp is not commissioner police. ये रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसा लग रहा है, तो वही जैसा है. तो जो इक्वेशन रेजिस्टेंस इन सीरीज का, वही इक्वेशन कैपेसिटेंस इन पैरेलल का, और जो इक्वेशन रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, वो इक्वेशन कैपेसिटेंस इन सीरीज का. प्यार मोहब्बत. सो Cp C1 plus C2. और ये तो दो कैपेसिटर के लिए. अगर n होते तो भी क्या कर लेते, इक्वेशन तो वही होता. फॉर n कैपेसिटर्स in parallel, Cp C1 plus C2 plus plus Cn. ये आप मेरे को, जैसा मैंने ये डायग्राम बनाया, आप मेरे को बहुत सारे n कैपेसिटर्स इन पैरेलल का डायग्राम बना के दे सकते हो? नहीं कुछ करना है, टेंशन मतलब मैं ही बना देता हूँ. देखिए आसान सी बात है. 1 2 टक 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 n, ये सारे एक बैटरी के साथ कनेक्टेड. ये n कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फंडा है. थोड़ा बीच में ले आते हैं, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं. अरे ये डायग्राम का झोल रहता है. सो ये C1 है, ये C2, ये Cn. तो पॉजिटिव चार्ज इस पे, ये Q1, ये Q2, यहाँ Qn, और यहाँ होगा Q is Q1 plus Q2 plus टक 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 plus Qn. ये एक बैटरी ने इन सब को बेचारों को थोड़ा 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 चार्ज दिया हुआ है. तो इस बैटरी में से जितना Q निकलेगा चार्ज, वो इसमें सब में बटेगा. तो Q is Q1 plus Q2 plus टक 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 plus Qn. So this was what was called parallel connection of capacitors. आगे चलते हैं. मैंने आपको जब स्टार्ट किया था टॉपिक लास्ट टाइम कैपेसिटर्स का, तब मैंने आपसे कहा था कि मैंने कैपेसिटर को डिफाइन किया था दैट अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, दैट कैन होल्ड चार्ज एंड आल्सो कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इस एनर्जी का इक्वेशन. सो it's a very important theory topic also. So energy stored in a capacitor. Now how can energy be stored? It is as simple as understanding कि initially तो दोनों प्लेट अनचार्ज ही है, बराबर, फिलहाल कोई चार्ज नहीं है. बट अंडरस्टैंड करो इस तरह कि मुझे एक प्लेट में से चार्ज लेकर दूसरे प्लेट में देना है. फाइनली जब सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, तब ऐसा हो जाएगा कि इस पे प्लस क्यू आएगा और इस पे माइनस क्यू, है ना. कैपेसिटर का मेन आइडिया ये है
कि one plate has positive charge plus q, this plate has negative charge minus q. How did this happen? ये हुआ कैसे? हमने क्या किया एक्चुअली, इस प्लेट में से हर प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज निकाल निकाल के इसको दूसरी प्लेट वन को देने लगे. We remove positive charge from 2 and we give it to 1. We transfer charge and positive charge प्लेट 2 में से निकलने लगा, तो प्लेट 2 क्या होने लगी, नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 पे आने लगा, तो प्लेट 1 क्या होने लगी, पॉजिटिव. डू यू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है? सो इनिशियली both plates are electrically neutral. This is the basic premise that we start with, that initially both plates are electrically neutral and we remove positive charge from plate 2. I need you to understand this carefully, and give it and transfer it to plate 1. Thus, due to removal of positive charge, plate 2 starts becoming negative, and due to accumulation of positive charge on plate 1, इस पे on plate 1 starts becoming positive. ये इतना दिखाई दे रहा है आपको बरोबर से? सही जा रहा है, एकदम परफेक्ट. सो प्लेट 2 में से हमने पॉजिटिव चार्ज निकाला. सपोज प्लेट 2 के पास 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव चार्ज थे, न्यूट्रल. उसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेट 1 को दिए. प्लेट 1 के पास भी उतने ही थे, तो पॉजिटिव 2 बढ़ गए यहां प्लेट 1 पे, तो प्लेट 1 बिकेम पॉजिटिव +2. यहां 2 पॉजिटिव कम हुए तो 2 नेगेटिव खड़े हो गए, तो दिस बिकेम माइनस. तो जितना पॉजिटिव इस पे आया उतना ही नेगेटिव इस पे आ गया. तो यहां पे ये सिचुएशन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. बट ये ऐसे थोड़ी होता है. हमको यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल के यहां तक भेजने का है, और वो भेजने का प्रोसेस है. वी हैव टू डू वर्क. किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रही आपकी, इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस अज्यूम. सो इन डूइंग दिस, मैं लिख देता हूं पहले, work will have to be done against the electric field. क्यों सर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेचुरली यो जाएगा या यो इन द डायरेक्शन जाएगा ना, तुमको इसको ऑपोजिट लेके जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू वर्क. ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यो जाना है, बराबर है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यू नो वेरी मच दैट अगर मैं कोई बॉडी को यहां से यहां लेके जाता हूं, आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ gravitational potential energy. Similarly, if I take this positive charge from plate 2 to 1, this work done will be stored in this charge in the form of electrostatic potential energy. तो एनर्जी किस तरह स्टोर हुई, कैसे हुई, उसका फंडा ये मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं. इनिशियली बोथ प्लेट्स आर न्यूट्रल. ये प्लेट न्यूट्रल प्लेट 2 में से हम पॉजिटिव चार्ज निकाल के 1 पे भेज रहे हैं. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज गोइंग ऑन 1, प्लेट 1 बिकम्स पॉजिटिव, एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2, प्लेट 2 बिकेम नेगेटिव. कोई भी प्लेट में से पॉजिटिव कम होगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो वो नेगेटिव बढ़ गया. जितना पॉजिटिव यहां आया है उतना ही नेगेटिव यहां दिखाई देगा आपको. सो दिस वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड has been stored
as electrostatic potential energy. So this was the idea. अब हम इसको इक्वेशन को डिराइव करेंगे एनर्जी का, तो ये उड़ा देता हूं. यू वांट टू हैव अ लुक, यू कैन हैव अ लुक. बहुत मस्त फंडा था. सो मैं यही डायग्राम फिर से ड्रॉ करने वाला हूं और एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेंगे जैसे हम हमेशा लेते हैं फिजिक्स में, कि एक एलिमेंटल चार्ज लेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह डालेंगे, कितना वर्क किया वो फाइंड करेंगे और फिर इंटीग्रेट मार देंगे. सो मेरे पास कंसिडर an intermediate situation where plate 1 has plus q dash charge and plate 2 consequently has minus q dash charge. ओके, सिचुएशन ये है, ये दो प्लेटें, प्लेट 1 ये रही, प्लेट 2 ये रही, इस पे है प्लस क्यू डैश, इस पे है माइनस क्यू डैश. ये पॉजिटिव चार्जेस इधर, नेगेटिव चार्जेस इधर. करना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको नाम देंगे हम डेल्टा क्यू डैश, उसको प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लेके जाना. ओके, कितना वर्क होगा वो देखेंगे. नाउ हियर लेट potential difference between the two plates b, v dash लगाए, v लगाए, जो भी आपको लगाना. तो सबसे पहली बात, you remember q is she v, v dash q dash whatever, so q dash is c into v dash. c तो चेंज नहीं होता, याद रखें. so how much is v dash q dash by c, equation number 1. करना क्या है, लेट्स टेक अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू डैश फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. सो क्यू डैश, डेल्टा क्यू डैश को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लेके जाना है, यहां से यहां तक लेके जाना है. भाई कितना वर्क करना पड़ेगा, भाई आप तो जानते ही हो, वर्क डन इज जो भी चार्ज लेके जा रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस. सो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, क्योंकि डेल्टा है तो हम नाम भी उसको, वर्क को भी डेल्टा डब्ल्यू ही कहते हैं. छोटा सा चार्ज है, छोटा सा वर्क, तो चार्ज विच इज डेल्टा क्यू डैश into potential difference. So this is delta q dash into v dash. भाई किधर है भाई v dash, ये रहा, तो q dash by c into delta q dash. ये इक्वेशन नंबर 2. भाई मुझे लगता है अब टोटल वर्क फाइंड करने का वो आ गया है. तो ये तो छोटा सा वर्क है, तो टोटल वर्क कितना होगा, शुरू से शुरू करिए, जब दोनों पे एक भी चार्ज नहीं था, 0 से फाइनली इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, Q. सो मैं इसको उड़ा रहा हूं. सो टोटल वर्क डन, भाई अपने आप नहीं होता, बैटरी लगाने से होता. लोग समझ रहे सर अपने लेके जाएंगे, हाँ अपने मतलब बैटरी लेके जाएंगे. सो द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू charge the capacitor from 0 to Q, final charge is, do you agree, work is integral delta W, 0 से लेकर Q तक delta W dash. So Q dash by C into ये डेल्टा की जगह dq dash लगा देते हैं, अच्छा रहता, 0 से लेकर Q तक. But I think it's anybody's guess, integral Q dash dq dash, this could easily have been q dq. तो q square, q dash square by 2 integral x raised to n dx वाला is x raised to n plus 1 by n plus 1. तो finally where are we now, we are here, integration will be done. So work is 1 by c, कितना होगा, q dash square by 2
0 से लेकर Q तक। भाई पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, ये तुस्सी आ गए बाहर जी। तो पहले Q डैश की जगह Q, तो Q का स्क्वायर माइनस Q डैश की जगह 0, 0 का स्क्वायर। वाह वाह जी, आ गया इक्वेशन Q स्क्वायर बाय 2C। नंबर पता ही नहीं कौन सा, 3 नंबर। अच्छा, दिस वर्क डन is stored as electrostatic potential energy। एंड पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है साहब? U। तो U सिंबल है उसका, तो U इज Q स्क्वायर बाय 2C। भाई भूले नहीं, Q इज ऑल्सो CV। तो यहां पे CV लगा दूं तो U इज C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। एक C कट गया तो हाफ CV स्क्वायर। You know, this is one of my favorite expressions. U is half CV square। एंड ये भी ना भूले कि V is Q by C। तो V is Q by C की जगह में अगर also Q is CV, तो V is Q by C और लगाए तो U कितना बन गया 1 by 2 into C। एंड बाजू में क्या V की जगह Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर। भाई C कट जाना, तो ये बन गया Q स्क्वायर। अबे ये तो वही है, अरे मुझे वो नहीं चाहिए, वो तो ला चुका हूं मैं चाहता हूं तो Q स्क्वायर बाय 2C तो आ चुका है, मुझे C को उड़ाना है। C इज हाउ मच? Q बाई V। हाँ, तो यू भूल जाते हो सर आप, क्या करेंगे। ये V कटा तो हाफ। तो आपने देखा एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन है। सो फाइनली सर कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं, बट सही टाइम पे सही चीज यूज करो तो ज्यादा मजा आता है। तो U is half CV square, it is also Q square by 2C and it is half QV। तो ये हो गया तुम्हारे 3 एक्सप्रेशन। तीनों को कब कब यूज करना उसका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, कोई भी कभी भी यूज कर सकते हो। बट सपोज यू हैव अ कैपेसिटर C and it is being charged by a battery V। So the best expression, you know, this is called charging of the capacitor. The best expression to use is this half CV square। सिंपल है, C भी है V भी है, लगा दो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर तुम ये यूज करना चाहो तो पहले तुमको Q फाइंड करना पड़ेगा, तो डिपेंड्स ऑन दैट। कभी कभी हम बैटरी को चार्ज करके, हम कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी निकाल देते हैं। विल बी डूइंग सम्स बेस्ड ऑन दिस आइडिया। तो अब बैटरी नहीं है, बैटरी हो गई डिस्को, तो अब लगाओगे किसको? तब हम यूज करेंगे, क्योंकि बैटरी नहीं है, V नहीं है, तो हम लगाएंगे Q स्क्वायर बाय 2C। You know, it is difficult to understand this right now because I'm not doing any sum based on this right now. But when I do a sum based on this, you will be actually able to understand कि ये किस तरह वर्कआउट हो रहा है। Don't worry, we'll do that in due course। अच्छा, एक एनर्जी के साथ ही जुड़ी हुई बात, इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? The energy stored, energy density। So the energy stored per unit volume, the energy stored per unit volume is called energy density। नाम है इसका रोई। हम डिनोट करते हैं इसको रोई से। सो रोई इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी इज व्हाट? U। एंड वॉल्यूम, भाई कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का एरिया A है और डिस्टेंस दोनों के बीच में है D, तो लाइक क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? A इंटू D। ये D नहीं, AD बराबर। अब U क्या है? Q हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर बाय AD। अच्छा, बट तुमको तो याद है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is epsilon 0 A by D।
तो उसको वहां लगाएंगे, तो रो ई इज हाफ सी की जगह एप्सिलॉन 0 ए बाई डी एंड इनटू वी स्क्वायर बाय, तुम बोले सर ये उल्टे वाला है, उड़ाओ, कौन बचेगा, हाफ एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर तो है ही एंड डी डी इज डी स्क्वायर. So if you don't mind, can I write this as v by d the whole square? And I think everybody out here knows this, that potential difference और electric field का रिश्ता ये तो जग जाहिर है. We have, we write this when we have, sometimes we don't have, but we have. V is ED. You know, E was delta V by delta R, so delta V is E into delta R. So V is electric field into distance. Or E is V by D. वो ब्यूटी नंबर ही कोई नहीं है, ఒకటి రెండు మూడు, तो पुट మూడు इन రెండు, तो ये therefore कर दीजिए, अच्छा रहेगा. E is V by D. हो V by D क्या हो गया जी, E हो गया. तो फाइनली तुमको रो ई का एक्सप्रेशन मिल गया. रो ई इज हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर. वाह लवली एक्सप्रेशन है जी. एंड याद रहे, लोग एनर्जी डेंसिटी की यूनिट जानना चाहते हैं. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी? सर एप्सिलॉन 0 भी लगाऊं, E भी लगाऊं, ना मुन्ना, एनर्जी डेंसिटी की ऐसा यूनिट यहां से मिलेगी. एनर्जी किसमें होती है, जूल. वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब. सो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब. समझ में आया बेटा? तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन रो ई इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एंड ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब. यहां पे बेसिक कैपेसिटर एंड होता है. मैं एक सम करने की कोशिश में हूं. टाइम है अपने पास? है. तो एक आध सम का तो टाइम बनता है. मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2.9 है नंबर इलस्ट्रेशन का. पेज 79 पे है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. सो लेट्स डू दिस फटाफट. मस्त सम रहने का, एक चकाचक सम है. टेक्स्ट बुक से एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लेना जरा. सो ध्यान से. इलस्ट्रेशन नाम क्या था? 2.9. 4 कैपेसिटर है, 1 2 3 4, and they are connected by a battery 500 volt. नामकरण कर देते हैं कैपेसिटरों का. C1, C2, C3 एंड C4. ये C1 है, C2, C3 एंड C4. हर एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड. C1, C2, C3, C4 is 10 microfarad and potential difference is 500 volt. What have they asked us? Find the equivalent capacitance and the charge on each capacitor. ओकी डोकी, मस्त एकदम फाइनल बात हो जाएगी. अच्छा, ये तो पहला सम है, शायद कैपेसिटर का पहला सम हम देखने जा रहे हैं. You know, whenever we see the sum, we have to understand सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मांगा. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानने के लिए सबसे पहले कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में, वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. तो लेट अस सी. सबसे पहले नजर पड़ती है C1 और C2 पे. कैन यू सी C1 और C2 इन दोनों का एक हाथ कॉमन है, सिंगल, और बीच में कुछ भी नहीं है. तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज. उसी तरह C2 का ये हाथ C3 के ये हाथ के साथ कनेक्टेड है प्योर. तो C2 एंड C3 आर आल्सो इन सीरीज. ओ वाओ, C1 इन सीरीज विद C2, C2 इन सीरीज विद C3. कोई मेरे को बोलेगा सर C3 का भी ये हाथ इसके साथ है ना, है ना?
बट कैन यू सी बीच में ये बैटरी का वो डंडा जा रहा है, बैटरी का कनेक्शन वायर जा रहा है, तो ये दोनों का कनेक्शन प्योर हुआ नहीं हो, तो तुम्हारा यहाँ C3 से C4 का कनेक्शन सीरीज नहीं है, ना ही C1 से C4 का ये कनेक्शन सीरीज है क्योंकि बैटरी का ये टर्मिनल जा रहा है। सो तुम्हारा C4 के साथ उंगली फिलहाल कर सकते नहीं। C1, C2 और C3 तीनों सीरीज में है। दिस इज योर फर्स्ट आइडिया। सो फ्रॉम द फिगर वी सी C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया, आपको चेक करना होता है कि अच्छा C2 C4 के साथ किस में है। C2 C4 के साथ किसी में नहीं है क्योंकि C2 और C4 के बीच में ये C1 आ रहा है और इस तरफ C3 आ रहा है, तो C2 और C4 का कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिलहाल भूल जाओ। C1 और C3 का कुछ नहीं है, C1 और C3 के बीच में यहाँ C2 है और यहाँ C4, so there is absolutely no connection. This is the logic you have to use to check series and parallel ideas. तो C1 और C2 सीरीज, yes. C2 और C3 सीरीज, yes. तो देखने जाओ तो मैं C1 और C3 को ऐसा कर दूं तो C1, C2, C3 तीनों सीरीज में आ गए, सो तीनों सीरीज में है। एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है सीरीज का? 1 by C1, 1 by C dash is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. C1, C2, C3 तीनों 10 है, तो 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10. That's how much? Sir, 3 by 10. And so how much is C dash? 10 by 3. Okay sir, first shot कमबख्त सही। अच्छा भाई, फर्स्ट शॉट कामयाब हुआ है। दूसरा, अब C1, C2, C3 को C डैश के नाम से इंटरप्रेट कर दो, ब्लू में ही बनाते हैं। आई होप आप मेरे संगे संगे बना रहे हो। और ये रहा आपका C4। अब आप ही बताओ, तू ही ये मुझको बता दे, करूं मैं आगे क्या? क्या लग रहा है? आपने देखा मैंने C1, C2, C3 को तीनों को C डैश बना दिया और यहां कनेक्ट कर दिया, और C4 ये जहां है वहां, और ये 500 वोल्ट। क्या लगता है दोनों किस में है? मैंने आपको बताया था पैरेलल की जानकारी कैसे मिलती है। इसका एक हाथ इसके साथ और दूसरा हाथ भी उसी के साथ, मतलब दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए। सुना? दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए, तो इसको कहते हैं पैरेलल। तो बधाई हो, तो C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। एंड इसके आगे कुछ है नहीं, फाइनल स्टेप है। सो C इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, C डैश प्लस C4। C डैश इज हाउ मच? 10 by 3 एंड C4 इज हाउ मच? 10। 40 by 3 रखना चाहो तो रख सकते हो, या 13.3 is your final answer. Can you see this? So C equivalent, आपका पहला क्वेश्चन सही हो गया कि C equivalent कितना है? 13.3 माइक्रोफैरेड या 40 by 3 माइक्रोफैरेड। Now this is your first question. This was A. Now we got to find B. We got to find charge on each capacitor. First things first, what is the total charge on the system? C equivalent मिल गया ना, तो अब Q मिलेगा पूरा। मैं इस पूरे को उड़ा देता हूं, और डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ C इक्विवेलेंट रख रहा हूं क्योंकि चार्ज फाइंड करने के लिए जगह का होना बहुत जरूरी है। सो द टोटल चार्ज, अब B चालू होता है, इसका नामकरण कर देते हैं B। टोटल चार्ज, ये चार्ज है ऑन द सिस्टम, पूरे कॉम्बिनेशन, पूरे सिस्टम पे। Q इज C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना है? 13.3 या 40 by 3 माइक्रो, भूलना नहीं। एंड V कितना था? 500 -6 + 2 -4, and 40 into 5, that's 200. 200 by 3 is 66.66, मतलब 66.7. or if you are so inclined, 6.67 into 10 raised to -3 कूलम। अब क्या करें श्रीमान?
अब हम जैसे आगे आए थे ना, हम वैसे पीछे जाएंगे। कैसे पीछे जाएंगे सर? देखो जरा, ये चार्ज किसके ऊपर है, किसके अक्रॉस है? सी इक्विवेलेंट के। एंड सी इक्विवेलेंट आखिर है क्या? Isn't it the parallel combo of C dash and C4? दिख रहा है आपको? C dash और C4 का पैरेलल कॉम्बो है। अगर पैरेलल कॉम्बो है, इसका मतलब C dash और C4 दोनों पे 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आर यू पेइंग अटेंशन? As C dash and C4 are in parallel, so both have पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कहते हैं, ऑफ 500 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी 500, इसके अक्रॉस भी 500। सबसे पहले इसके अक्रॉस C4 के अक्रॉस 500 है, तो चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑन C4 पैरेलल है तो चलता है, सीरीज में ना चले भाई। इज, डू यू नो Q is CV? which Q4 is C4 into V। Q4 भाई, C4 कितना था? 10 माइक्रो, एंड V कितना था? 500। एक दो तीन जीरे गए, तो 5 into 10⁻³ कूलम। वाह वाह सर, जबरदस्त। मतलब हमको Q4 पे चार्ज मिल गया, C4 पे एक्चुअली। पूरे सिस्टम पे कितना था? 6.67। उसमें से C4 पे कितना है? 5। सो चार्ज ऑन C डैश, लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल कितना? 6.67। 4 पे कितना आया? 5। तो Q डैश या Q, isn't it Q डैश प्लस Q4? तो हाउ मच इज Q डैश? Q माइनस Q4। 6.67 माइनस 5 कितना हुआ? 1.67। वो पर खत्म नहीं हुआ है साहब, ये Q डैश पे है, इस पे, इसके भी पीछे जाएंगे। ये C डैश कौन था? This charge, isn't this C dash series combo of C1, C2, C3? So this Q dash appears across series combo, सर ये combo क्या होता है? Combo मतलब combination of C1, C2 and C3। ये स्टेटमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। लेट मी गेट बैक अगेन। ये हमने टोटल चार्ज ऑन सिस्टम फाइंड किया Q, which was C equivalent into V, तो 6.67 10⁻³ ये C equivalent क्या था? Wasn't it the parallel combination of C dash and C4? तो parallel combination of C dash and C4 पे इतना चार्ज है। अब C4 और C dash पैरेलल में, मतलब दोनों के अक्रॉस पीडी कितना है? 500। तो C4 के अक्रॉस पीडी कितना हुआ? 500। तो चार्ज तुरंत फाइंड किया जाएगा। Q4 is C4 into V, मिल गया मेरे को 5 into 10⁻³ अब टोटल पे 6.67, उसमें से C4 पे 5, तो C डैश पे कितना होगा? माइनस करके फाइंड कर लिया आंसर। बट C डैश खत्म नहीं हुआ है। C डैश क्या था? wasn't it, मैं फिर से एक बार यहाँ डायग्राम बना दूं, सबसे पुराना वाला डायग्राम है, सबसे प्रथम। आई होप आपको याद हो, ये सबसे पहला डायग्राम बनाया था। ये C1, C2, C3 और C4। ये C डैश ये है ना, C1, C2, C3 का सीरीज कॉम्बो। एंड अगर आप लेक्चर के स्टार्टिंग में चलो, तो मैंने सीरीज कॉम्बो की बात की थी, ब्लू में लिखा था यहाँ पे, इन सीरीज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो जो पूरे कॉम्बो पे आ रहा है वही हर एक पे आ रहा है, वही तो चार्ज ऑफ द सिस्टम। दस Q dash appears across series combo of this. So जो चार्ज Q1 पे, वही Q2 पे, वही Q3 पे, वही Q डैश। तो Q डैश तो है मेरे पास, तो Q1 is Q2 is Q3 is 1.67 into 10⁻³ कूलम। मेरे को तीनों मिल गए, Q1, Q2, Q3 मिल गया, और यहाँ पे मेरे को Q4 मिल गया था। तो इस तरह पूरा सम सेट होता है। अच्छा, समरी माइट आस्क मी, सर सीरीज में होते तो? बिल्कुल,
सीरीज में होते तो मैटर थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ता. आई विल डू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. एक मस्त सम लेके सीरीज कॉम्बो भी समझाऊंगा. आप ये पूरा सम 2 बार देखना. ऑलराइट, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे समझा दूं मैंने क्या किया था. पहले तो सी इक्विवेलेंट फाइंड किया, सी इक्विवेलेंट के बाद क्यू फाइंड किया. वो क्यू इन दोनों में डिवाइड हो रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल में है. C4 पैरेलल में 500 के साथ है तो Q4 मिल गया. C4 इंटू V साधारण फटाक से. Q में से Q4 माइनस किया तो Q डैश मिल गया. और ये Q डैश किस पे है? C डैश पे. एंड C डैश इज व्हाट? सीरीज कॉम्बो ऑफ C1 C2 C3. सीरीज में चार्ज रिमेन सेम. तो Q1 वही Q2 वही Q3 वही Q डैश. तो मेरे को यहां मिल गया है. सो ये सम 2 बार करना, आप शांति से देख के पहले समझ लेना. और नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर के कुछ और गुण धर्म देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैप्पी सॉल्विंग. बाय बाय.